Good afternoon class. Today we are going to discuss about ideal gas equation. Students, earlier to this we have seen about dipole interaction, dipole interaction, dipole induced dipole interaction, hydrogen bonding and so on, and we have also discussed about gaseous law, in which we have seen Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac's law, Avogadro law and so on. So students, today we will see ideal gas equation, which will be comprising of the main three laws, that is Boyle's law, Charles law and Avogadro law. So students, whenever you see that both the three laws have a relationship of volume with pressure, if we see the relationship of volume with pressure, then we call it as that volume is inversely proportional to pressure. It is Boyle's law. Then we see the relationship of volume with temperature, that is volume is directly proportional to temperature, is Charles law. And we have seen that volume is directly proportional to number of moles, is Avogadro law. Okay, so students, ideal gas equation कैन बी एक्सप्लेन बाई कंबाइनिंग दीज थ्री लॉज. हम लोग इन तीनों लॉज को कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं. एंड बेसिकली स्टूडेंट्स, आइडियल गैस इक्वेशन इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. ओके, this is ideal gas equation. It is very important from your exam point of view. Now students, you can see here what I explained earlier is given here. These are the three laws. First one Boyle's law, second one Charles law and third one Avogadro laws. Combining all the three law, we can write it directly as V is directly proportional to NT by P. Okay, or we can also equate it as, students you can see here, we can also equate it as V is equal to R and T by P. So here the R is proportionality constant. Okay, as you see in this equation, directly proportional symbol, so replacing this we put a proportionality constant representing by R. Okay, so now students, what is this R? This R is basically called as the gas constant. Okay, so students, when you equate this equation, you can see that PV is equal to nRT. This is ideal gas equation. Equation number 5.17 is ideal gas equation. Now students, if we are going to talk about R, because this is also important, that is a gas constant, so R will be equal to PV by NT. Okay, now students, you can see, as earlier said, R is a gas constant and it is same for all gases. As it is same for all gases, it is also called as यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. चूँकि स्टूडेंट्स ये सारे गैसेस के लिए सेम रहता है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जो हमारा इक्वेशन है 5.18. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर जो वैल्यूज़ हैं आर की, वो डिपेंड कर रही है पी की यूनिट पे, वी की यूनिट पे, एन की यूनिट पे और टी की यूनिट पे. और यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर हमें तीन वेरिएबल्स भी पता हैं इस इक्वेशन में, तो हम फोर्थ को एजम्पशन कर सकते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर है किसी भी एन मोल्स ऑफ गैस का, तो हमें वॉल्यूम सेम मिलेगा. मतलब अभी हमने देखा है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इज़ बेसिकली आर टी बाई पी. हम बात कर रहे हैं अगर एन मोल्स को हमने 1 मोल मान लिया है, ठीक है, तो अगर 1 मोल है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं. तो हम इस चीज़ को ही कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ अगर कोई गैस है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेबल होता है किसी भी गैस के लिए. कंडीशंस ये होनी चाहिए कि जब बिहेवियर जो हो गैस का वो आइडियल बिहेवियर हो. ठीक है, और स्टूडेंट्स, अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अगर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है
अंडर STP। STP स्टूडेंट्स होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं 273.15 केल्विन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज़ 273.15 केल्विन। और जो प्रेशर हम लेते हैं वो लेते हैं 1 बार प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, जब हम ये प्रेशर लेते हैं तो इस केस में वॉल्यूम जो निकल के आता है इज़ 22.71098 लीटर पर मोल। ओके, आप इसको 22.7 लीटर पर मोल भी डायरेक्टली कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो वैल्यू होती है आर की, अगर 1 मोल ऑफ गैस के लिए हम बात करते हैं जो कि एक आइडियल गैस है, तो उसे हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं और हम यहाँ पे आंसर देखते हैं। इट इज़ 8.314 जूल पर किलो पर मोल। आपको ये वैल्यू दिमाग में रखनी है, आर की वैल्यू दैट इज़ 8.314 जूल पर किलो पर मोल। ठीक है, पर केल्विन पर मोल, सॉरी टेम्परेचर की बात है, पर केल्विन पर मोल। स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ही आप देख पा रहे हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो हमें रिलेशनशिप दे रहा है 4 वेरिएबल्स के, और ये डिस्क्राइब कर रहा है स्टेट ऑफ एनी गैस। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो वो आपको बताना रहेगा जो आइडियल गैस इक्वेशन है। सीधे सीधे आप बोल देंगे PV = nRT इज़ इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ जाते हैं तो यहाँ से हम एक और रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं। ये जो रिलेशनशिप होगा वो वेरिएशन होगा वेरिएबल्स के लिए। मतलब अगर टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर किसी भी फिक्स्ड अमाउंट गैस का वेरी करता है फ्रॉम T1 to V1, P1 to T2 एंड V2 to P2, तब हम क्या लिख सकते हैं। तो अगेन स्टूडेंट, जैसे हम बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ वगैरह में देखते थे कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया या एक्सपेंड किया आपका गैस, तो V1 से V2 वॉल्यूम हो गया, T1 से T2 टेम्परेचर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी हम उन वैल्यूज़ को 2 फॉर्म में लिख पाएंगे, दैट इज़ P1 V1 by T1 = nR, और जो दूसरी है P2 V2 by T2 = nR। या हम कॉमनली कह सकते हैं, अगर ये 1 मोल ऑफ गैस की बात करें हम, तो P1 V1 by T1 = P2 V2 by T2। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी P1 V1 by T1 = P2 V2 by T2, ये आपका कंबाइंड गैस इक्वेशन है। यहाँ से स्टूडेंट्स हेल्प कहाँ आता है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। सपोज़ करिए आपको V1 नहीं पता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाकी डाटा जब आपको गिवन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक क्वेश्चन भी देख पा रहे हैं, ये इसी बेस पे है। क्वेश्चन है at 25 degrees Celsius and 760 mm of Hg pressure, a gas occupies 600 ml volume. What will be its pressure at a height where temperature is 10 degrees Celsius and volume of the gas is 640 ml? तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप कन्वर्जन्स को ध्यान में रख लीजिएगा कि आपका जो डिग्री सेल्सियस में हमें उसे केल्विन में चेंज करना है, तो हम उसमें 273 ऐड कर देंगे। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, जब हमने ऐड किया तो T2 हमारा 283 केल्विन बना, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ स्टूडेंट, जो T1 है वो भी 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसमें भी हम 273 ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, अब हम जब कंबाइंड गैस लॉ को यूज़ करेंगे तो कंबाइंड गैस लॉ को यूज़ करते हुए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, चूँकि हमें प्रेशर ऑक्यूपाई करना था, P2 को निकालना है, तो हम इसको फॉर्मूला को रख सकते हैं P1 V1 T2। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा P1 V1 T2 by T1 × V2। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 676.6 mmHg। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका आइडियल गैस इक्वेशन। न्यूमेरिकल्स आपसे कई फॉर्म में आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स आपके डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके आ सकते हैं। एवोगैड्रो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आइडेंटिफाई करने को आ सकता है, आपसे पूछ सकता है इक्वेशन ऑफ स्टेट के फॉर्म में, या फिर आपको कंबाइंड गैस लॉ पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं डेंसिटी और मोलर मास ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस, तो जब हम कह रहे हैं डेंसिटी और मोलर मास किसी भी गैसियस सब्सटेंस की, तो चूँकि स्टूडेंट्स आइडियल गैस इक्वेशन को हम रीअरेंज अगर इस तरीके से करते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं N/V = P/RT। ठीक है, जब हम इस तरीके से आइडियल गैस इक्वेशन को रिप्लेस करते हैं तो हम इसमें क्या कर रहे हैं
n की जगह पे m/m रख रहे हैं, ठीक है, स्मॉल m बाई कैपिटल M, जहाँ पे स्मॉल m मास है, कैपिटल M मॉलिकुलर मास है, ठीक है। तो हमें डेंसिटी का फैक्टर भी लाना है, मोलर मास का भी फैक्टर लाना है। मोलर मास का फैक्टर हमें दिख रहा है कैपिटल M, अब हमें डेंसिटी की फैक्टर लानी है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जब हम इसको फिर से रीअरेंज करेंगे। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब हम n की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे, m/m, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं m/m इंटू v, क्योंकि यहाँ v पहले से ही था। ये किसके बराबर हो रहा है, p/RT। अब स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो हम मास अपॉन वॉल्यूम की जगह डेंसिटी को पुट कर देंगे, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं d/m हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, p/RT। नाउ स्टूडेंट्स अगेन जब हम रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को भी, तो आप देख पाएंगे कि हम मोलर मास निकाल सकते हैं। कैसे, इट्स वेरी सिंपल। आपका ये इक्वेशन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m विल बी इक्वल टू d/RT/P, ठीक है। तो यही रिलेशनशिप बताता है स्टूडेंट्स, अगर हमें डेंसिटी और मोलर मास किसी भी गैसियस सब्सटेंस का देखना है। जनरली इस